السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پاکستان ادبی فورم۔ منٹو کے 100 افسانے، یہ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے جس سے ہم آپ کے لیے مختلف افسانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم ان کا ایک افسانہ جس کا عنوان ہے جیب کفن لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں سعادت حسن منٹو کا افسانہ جیب کفن۔ فارغ مجھے نہ جان کہ ماند صبح مہر ہے داغ عشق زینت جیب کفن ہنوز۔ جی چاہتا ہے آج آپ سے اپنی تحریریں پڑھنے والوں سے تمام مقدمائی اور بے بجائی تکلفات برطرف رکھ کے باتیں کروں۔ یوں تو میرے افسانوں، ڈراموں اور نیم افسانوی مضمونوں میں بھی اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست دل و دماغ کے اس خانے سے ہوتا ہے جو عام طور پر انسان کی اپنی ذات کے لیے مخصوص ہوتا ہے، لیکن ان پر چونکٹا چونکہ افسانے کا ہوتا ہے، اس لیے آپ انہیں اسی شکل میں دیکھتے رہے ہیں۔ آج میرا دل بہت افسردہ ہے۔ ایک عجیب سا عزم حلال اس پر چھایا ہوا ہے۔ 4 برس پہلے جب میں نے اپنے دوسرے وطن بمبئی کو خیر بات کہی تھی تو میرا دل اسی طرح مغموم تھا۔ مجھے وہ جگہ چھوڑنے کا صدمہ تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے بڑے پرمشقت دن گزارے تھے۔ اس خطہ زمین نے مجھے ایسے آوارہ اور خاندان کے دھتکارے ہوئے انسان کو اپنے دامن میں جگہ دی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، تم یہاں 2 پیسے روزانہ پر بھی خوش رہ سکتے ہو اور 10,000 روپے روزانہ پر بھی۔ اگر تم چاہو تو دونوں صورتوں میں دنیا کے مغموم ترین انسان کی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یہاں تم جو چاہو کرو، تمہاری عیب جوئی کوئی نہیں کرے گا۔ یہاں تمہیں کوئی ناصح بھی نہیں ملے گا۔ ہر کٹھن کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی کا ہر اہم فیصلہ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تم فٹ پاتھ پر رہو یا کسی عالی شان محل میں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ تم جاؤ یا رہو، مجھے اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ میں جہاں ہوں موجود ہوں اور موجود رہوں گی۔ یہاں 12 برس رہنے کے بعد جو کچھ میں نے سیکھا، یہ اسی کا باعث ہے کہ میں یہاں پاکستان میں موجود ہوں۔ یہاں سے کہیں اور چلا گیا تو وہاں بھی موجود رہوں گا۔ میں چلتا پھرتا بمبئی ہوں۔ جہاں بھی قیام کروں گا وہاں میرا اپنا جہان آباد ہو جائے گا۔ بامبے چھوڑنے کے بعد میں افسردہ تھا۔ میرے وہاں دوست تھے جن کی دوستی پر مجھے ناز ہے۔ وہاں میری شادی ہوئی، وہیں میرا پہلا بچہ ہوا۔ دوسرے نے بھی اپنی زندگی کا پہلا دن وہیں شروع کیا۔ میں نے وہاں چند روپوں سے لے کر ہزاروں اور لاکھوں تک کمائے اور خرچ کیے۔ مجھے اس سے محبت تھی اور آج بھی ہے۔ ملک کے بٹوارے سے جو انقلاب برپا ہوا اس سے میں ایک عرصے تک باغی رہا اور اب بھی ہوں، لیکن بعد میں اس خوفناک حقیقت کو میں نے تسلیم کر لیا، مگر اس طرح کہ مایوسی کو میں نے اپنے پاس تک نہ آنے دیا۔ میں نے اس خون کے سمندر میں غوطہ لگایا جو انسان نے انسان کی رگوں سے بہایا تھا، اور چند موتی چن کر لایا عرق انفعال کے، مشقت کے، جو اس نے اپنے بھائی کے خون کا آخری قطرہ بہانے میں صرف کی تھی۔ ان آنسوؤں کے جو اس جنجلاہٹ میں کچھ انسانوں کی آنکھوں سے نکلے تھے کہ وہ اپنی انسانیت کیوں ختم نہیں کر سکے۔ یہ موتی میں نے اپنی کتاب سیاہ حاشیے میں پیش کیے۔ میں انسان ہوں، وہی انسان جس نے انسانیت کی عصمت دری کی تھی، جس نے فنا کو بادہ ہر جام بنایا تھا، جس نے دوسری اجناس کی طرح انسان کے گوشت پوست کو دکانوں میں سجا سجا کر بیچا تھا۔ میں وہی انسان ہوں جس نے پیغمبری کا رتبہ حاصل کیا، اور میں وہی انسان ہوں جس نے پیغمبروں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ مجھ میں وہ تمام کمزوریاں اور خوبیاں موجود ہیں جو دوسرے انسانوں میں ہیں۔ یقین مانیے کہ مجھے اس وقت دکھ ہوا، بہت بڑا دکھ، جب میرے چند ہم اسروں نے
मेरी इस कोशिश का मुज़ाहिका उड़ाया। मुझे लतीफ़ा बाज, यावा गो, सनकी, नामाकूल और रिजत पसंद कहा गया। मेरे एक अजीज़ दोस्त ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने लाशों की जेबों में से सिगरेट के टुकड़े, अंगूठियाँ और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें निकाल निकाल कर जमा की हैं। उस अजीज़ ने मेरे नाम एक खुली चिट्ठी भी शाया की, जो वो बड़ी आसानी से मुझे खुद दे सकते थे। इसमें भी उन्होंने स्याह हाशिए की तज़हीक में खुले तौर पर कलमकारी की। मैं इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आया। मैंने इस आलम में इस कीचड़ के जवाब में ऐसी कीचड़ तैयार की जो बहुत देर तक मेरे नाम निहाद नकादों के चेहरों पर जमी रहती। लेकिन मैंने सोचा और महसूस किया कि ऐसा करना गलती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना इंसान की खसलत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खामोश रहना उसकी दानिशमंदी है, उसका तहम्मुल है, उसकी बुर्दबारी है। मुझे गुस्सा था इसका नहीं कि अलफ ने मुझे क्यों गलत समझा। मुझे गुस्सा था इस बात का कि अलफ ने महज फैशन के तौर पर एक सकीमो अकीम तहरीक की उंगली पकड़कर बैरूनी सियासत के मसनूई अबरू के इशारे पर मेरी नीयत पर शक किया और मुझे इस कसवटी पर परखा जिस पर सिर्फ सुर्खी ही सोना थी। मुझे गुस्सा था कि उन लोगों को क्या हो गया है, ये कैसे तरक्की पसंद हैं जो तनज़्ज़ुल की तरफ जाते हैं, ये उनकी सुर्खी कैसी है जो स्याही की तरफ दौड़ती है, ये उनकी मज़दूर दोस्ती क्या है जो मज़दूर को पसीना बहाने से पहले ही मज़दूरी के मुतालबे पर उकसा रही है, ये उनके सरमाए के खिलाफ मेहनत की मुबारज़त किस किस्म की है कि ये खुद सरमाए से मुसल्लह होना चाहते हैं और अपने महबूब हथियार दरांती और हथौड़ा अपने मुखालफों के हाथ में दे रहे हैं। ये उनका अदब में किस किस्म का इज्तिहाद है कि गज़ल को मशीन और मशीन को गज़ल बनाने के मंसूबे सोचे जा रहे हैं। मुझे गुस्सा था उनके आए दिन के मंशूरों पर, उनके तवील तवील करारदादों पर, उनके मुख्तलिफ बयानों पर जिनका मसाला बराह रास्त रूस के क्रेमलिन से बम्बई की खेतवाड़ी में आता था और वहाँ से नकलो रोड पहुँचता था। रूस के फ़लाँ शायर ने कहा है, रूस के फ़लाँ अफसाना निगार का ये बयान है, रूस के फ़लाँ दानिशवर ने ये दानिशमंदाना बात की है। मुझे गुस्सा आता था ये लोग इस खित्ता अर्ज़ की बात क्यों नहीं करते जिस पर कि खुद सांस लेते हैं। अगर हमने दानिशवर पैदा करने बंद कर दिए हैं तो इस बांझपन का इलाज क्या सुर्ख तुखमरेजी ही बाकी रह गया। मुझे गुस्सा था इसलिए कि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता था। तकसीम मुल्क के बाद मुल्क में अफरात व तफरीद का आलम था। जिस तरह लोग मकान और मिलें अलाट करवा रहे थे, इसी तरह वो बुलंद मकामों पर भी कब्जा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। कोई एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता था कि इतने बड़े इंकलाब के बाद हालात वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। पुरानी पगडंडियाँ बड़ी सड़कें बनेंगी या उनका वजूद ही मिट जाएगा, इसके मुतल्लिक वसूख से इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। गैर की हुकूमत और अपनों की हुकूमत में क्या फ़र्क होगा, इसके बारे में भी हतमी तौर पर कोई क़यास आराई नहीं हो सकती थी। फ़िज़ा कैसी होगी और इसमें ख़यालात और एहसासात की सही नशोनुमा क्यों कर होगी। रियासत और हुकूमत से फ़र्द और जमात का रिश्ता कैसा होगा, ये ऐसी बातें थीं जिन पर इंतहाई गौर व फिक्र की ज़रूरत थी। ये काम ऐसा था जिसमें हमें बैरूनी नुस्खों पर अमल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हमारे नाम निहाद दानिशवरों ने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया और क़यादत के शौक़ में अपना नीम रस जौहर प्याल में डाल दिया, जहाँ वो अदब निगहदाश्त के बायस गलने सड़ने लगा। अदब के इन तरक्की पसंद ठेकेदारों ने पहले फैसला किया कि उनकी जमात का कोई रुकन सरकारी पर्चे में काम करेगा, ना उसके लिए लिखेगा। मैंने इसकी मुखालफत की और उनको समझाया कि ये इकदाम सरीहन गलत है, गलत ही नहीं बल्कि मुज़हिका खेज़ है, इसलिए कि ये फ़ैसला इस एहतमाल पर चुगली खाता था जो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जमात को अपने अरकान की गैर साबित कदमी के मुतल्लिक़ था या हो सकता था। इसके अलावा ऐसा फ़ैसला तो फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन मैं इसे भी बेहुदा करार देता क्योंकि कोई भी सरकार सिर्फ वही चीज़ मुंतखब करेगी जो उसकी मंशा के मुताबिक हो। हमारी सरकार ने भी चुनांचे यही मुज़हिका खेज़ बात की, मगर कुछ देर के बाद
जबकि तरक्की पसंद अपने अदम तावन की करारदाद का ढोल काफ़ी ऊंचे सुरों में पीट चुके थे। रेडियो की नशरियात और सरकारी पर्चों के औराक तरक्की पसंदों के अफकार के लिए बंद कर दिए गए। बाद में कुछ तरक्की पसंद अमृतधारा एक्ट के तहत जेल में ठूंस दिए गए। हुकूमत हमाकत का दूसरा नाम है, इसलिए जो हमाकतें पै दर पै उससे तरक्की पसंदों को खामोश करने के सिलसिले में सरजद हुई, मैं इन पर तबसरा करना नहीं चाहता। मुझे अफसोस है कि अहमद नदीम कासमी और ज़हीर काश्मीरी वगैरह जो बड़े बेज़रर किस्म के इंसान हैं, जिनकी दिमागी और जिस्मानी साख्त लफ्ज़ साजिश के सही मानों की मुतहम्मल नहीं हो सकती, बेकार जेल में डाले गए। एक को भाई बनाने का शौक है, दूसरे को बहनी। मालूम नहीं दोनों की इस मासूम शक्ल में सियासी रद्द-ए-अमल की शरारत हुकूमत को कहाँ से नजर आ गई। गुस्से में आकर बगैर सोचे समझे हुकूमत ने उन लोगों को जेल में डाल दिया। ऐसे नाई के सुपुर्द कर दिया गया जो उनका हुलिया बिगाड़ के रख देगा। कुछ देर के बाद जब ये रिहा होकर आएंगे तो कौन कह सकता है कि ये किस किस्म की मखलूक होंगे। सर से पांव तक मुंडे होंगे या उन पर बाल ही बाल होंगे। गाजी कहलाएंगे या शहीद, लीडर बन जाएंगे या बाजार में मजमे लगाकर दवाइयाँ बेचेंगे। शायरी और अफसाना निगारी से तौबा कर लेंगे या इस पर मर्द तस्मा पा की तरह सवार हो जाएंगे। इसमें तज़हीक का कोई पहलू नहीं। अगर मुझे जेल में ठूंसा जाता तो मैं अपने मुतल्लिक भी यही कहता, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा, इसलिए कि मैं बहुत ज़कीउल हिस्स हूँ। हुकूमत और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जमात दोनों एहसास कमतरी का शिकार हुए। मुझे इसका अफसोस था और अब भी है। ज़्यादा अफसोस तरक्की पसंदों का था जिन्होंने खामखा सियासत के फट्टे में अपनी टांग अड़ाई। अदब और सियासत का जोशाना तैयार करने वाले ये अताई क्रेमलिन के तजवीज़ करदा नुस्खे पर अमल कर रहे थे। मरीज़ जिसके लिए ये जोशाना बनाया जा रहा था, इसका मिजाज कैसा है, उसकी नब्ज़ कैसी है, इसके मुतल्लिक़ किसी ने गौर ना किया। नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है कि आज सब अदब के जमूद का रोना रो रहे हैं। मेरा दिल आज बहुत अफसरदा है कि वो पर्चे जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जमात के नुमाइंदे थे, इन्हें अपने नाखुदाओं के साथ कई उल्टी सीधी जकंजें लगाना पड़ी और आखिर में अपने तमाम मशवरों, अपने तमाम बयानों और अपनी तमाम करारदादों को कागज़ों पर से खुरचना पड़ा और इन अदीबों का दोबारा तावन हासिल करने के लिए कई तावीलें और कई माजरतें पेश करना पड़ी, जिनको ये अपनी स्याह फहरिस्त में दाखिल कर चुके थे और अपनी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए मलून व मतऊन करार दे चुके थे। मेरा दिल आज बहुत अफसरदा है जब मैं सरकार से अदम तावन का फैसला करने वालों को अपने फैसले पर नज़रसानी करते देखता हूँ। उन्होंने क्यों ना सोचा कि इंसान की जद्दोजहद के वसी दायरे में सबसे अहम जद्दोजहद पेट की है। हमारी हिम्मत मर्दां यज़दां पर कमांड डाल सकती है। हमारे जुनून के दश्त में जिब्रील एक ज़बू सैद हो सकता है। गो ये छुपी हुई हकीकत नहीं कि हमें पेट की खातिर बाज़ औक़ात किसी उल्लू के पट्टे नवाब की मदा सराई भी करनी पड़ती है। ये इंसान का बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन ये अलमिया ही इंसान का दूसरा नाम है। मेरे दिल में अब सारा गुस्सा अफसरदगी में तब्दील हो गया है। मैं बहुत मलूल और मगमूम हूँ। जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैं देख रहा हूँ, इससे मेरी अफसरदगी मुज़महिल होती जा रही है। मेरी मौजूदा ज़िंदगी मसाइब से पुर है। दिन रात मुशक्क़त करने के बाद बमुश्किल इतना कमाता हूँ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए पूरा हो सके। ये तकलीफ़ दे एहसास हर वक्त मुझे दीमक की तरह चाटता रहता है कि अगर आज मैंने आंखें नीच ली तो मेरी बीवी और 3 कमसिन बच्चियों की देखभाल कौन करेगा। मैं फाहिश नवीस, दहशत पसंद, सनकी, लतीफ़ाबाज और रिजत पसंद सही, लेकिन एक बीवी का खामद और 3 लड़कियों का बाप हूँ। इनमें से अगर कोई बीमार हो जाए और मौजू मुनासिब इलाज के लिए मुझे दर दर की भीख मांगनी पड़े तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। मेरे दोस्त भी हैं जो मुझसे ज़्यादा मफलूकुल हाल हैं। बर वक्त अगर मैं उनकी मदद ना कर सकूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। दुनियावी मामलात में अगर मैं किसी का या अपना सर झुका हुआ देखूं तो खुदा की कसम मुझे दुख होता है। लेकिन जब मैं सोचता हूं अगर मेरी मौत के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो और लाइब्रेरियों के दरवाजे खोल दिए गए और मेरे अफसानों को वही रुतबा दिया गया जो इकबाल मरहूम के शेरों को दिया जा रहा है, तो मेरी रूह सख्त बेचैन होगी
मैं इस बेचैनी के पेश नज़र इस सलूक से बेहद मुतमिन हूँ जो अब तक मुझसे रवा रखा गया है। खुदा मुझे इस दीमक से महफूज रखे जो कब्र में मेरी सूखी हड्डियाँ चाटेगी। मैं आज बहुत अफसरदा हूँ जब मैं अपने गिरदोपेश नबज़ शनासों को ये कहते सुनता हूँ कि अदब पर जमूद तारी हो गया है। अदब इन्हितात पजीर है, अदब एक तातुल में गिरफ्तार है। ये गुफ्तार इस्लाम ख़तरे में है कि गुफ्तार लायानी से मिलती जुलती है। अदब कायम बेज़ात है, जिस तरह के इस्लाम है कुव्वत कभी इन्हितात पजीर नहीं होती, इस पर कभी जमूद या तातुल तारी नहीं होता। एटम की कुव्वत इसके इंकशाफ से पहले भी मौजूद थी और उसके इंकशाफ के बाद भी मौजूद रहेगी। इसका गलत इस्तेमाल या इसके अदम इस्तेमाल का ये मतलब नहीं होगा कि वो नहीफ हो गई है, जान बलब है या मर गई। अदब इसी कुव्वत, इसी तवानाई, उसी आबोताब से ज़िंदा है जिस तरह के वो मनसा शहूद पर आने से पहले ज़िंदा था। इस पर जमूद और तातुल तारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारा अपना जमूद और तातुल है जिसे हम अदब के जमूद और तातुल से ताबीर करते हैं। इस बहरान के असबाब अलल चुनाचे हमें अदब में नहीं खुद अपने अजहान में ढूंढने चाहिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं। अदब के मुस्तकीम रास्ते से हटकर अगर हम इधर उधर निकल जाएं तो ये नहीं कहना चाहिए कि रास्ता हमारे आगे से हट गया है। सियासत का मुकाम अलग है, इस तक पहुंचने के लिए सियासत के पेच दर पेच रास्तों पर गामजन होना भी गलती है। सोवियत रूस के अदब का लाख ढिंढोरा पीटा जाए, मगर ये हकीकत है कि वो दोगली तहरीरें जो वहाँ लाखों टन कागज़ों पर छपती हैं अदब नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अदब अदब है या कोई और शय है जिसका एक नमूना रूसी अदीबों की हालिया तहरीरों की शक्ल में पेश किया जा सकता है। अदब पर किसी की इजारादारी हुई है न होगी। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे ठेका पर देकर करा लिया जाए। अदब पर जमूद तारी है, ये एक ढकोसला है। इस्लाम खतरे में है कि किस्म का इसे खड़ा करने वाले भी वही हैं जो आज से चंद माह पेशतर ममटियों पर चढ़कर पुकारते रहे हैं कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने तकसीम हिंद के बाद अदब की लाज रख ली है। गरीब मर रहा था मगर उन्होंने अपना खून देकर उसे जिंदा कर दिया है। हैरत होती है कि इतनी जल्दी उनकी गिनती के चंद अरकान के मुक़य्यद हो जाने के बाद फ़ौरन बाद अदब की ज़िंदगी फिर क्यों खतरे में पड़ गई। मैं आज बहुत अफसोसदा हूँ। पहले मुझे तरक्की पसंद तस्लीम किया जाता था, बाद में मुझे एकदम रिजत पसंद बना दिया गया, और अब फतवे देने वाले सोच रहे हैं और फिर से ये तस्लीम करने के लिए आमादा हो रहे हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ, और फतवों पर अपने फतवे देने वाली सरकार मुझे तरक्की पसंद यकीन करती है। यानी एक सुरखा, एक कम्युनिस्ट कभी कभी झुंझला कर मुझ पर फहश निगारी का इल्ज़ाम लगा देती है और मुकदमा चला देती है। दूसरी तरफ यही सरकार अपनी मतबूआत में ये इश्तिहार देती है कि सआदत हसन मंटो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अदीब और अफसाना निगार है जिसका कलम गुज़श्ता हंगामी दौर में भी रवां दवां रहा। मेरा अफसरदा दिल लरसता है कि मतलून मिजाज सरकार खुश होकर एक तमगा मेरे कफन से टांक देगी जो मेरे दागे इश्क की बहुत बड़ी तौहीन हो। बंटवारे के बाद अब तक मैं ये किताबें तरतीबवार आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। इनसे आप बतरीके अहसन मेरी दिमागी कैफियत का जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 1 तलख तुरश और शीरी, नंबर 2 लज्जत संग, नंबर 3 स्याह हाशिए, नंबर 4 खाली बातनें खाली डब्बे, नंबर 5 ठंडा गोश्त, नंबर 6 नमरूज की खुदाई, नंबर 7 बादशाहत का खात्मा। इनके बाद अफसानों का ये ताज़ा मजमुआ पेश खिदमत है। इसमें सिर्फ 2 अफसाने मतबूआ हैं, यजीद और 1919 की एक बात, बाकी गैर मतबूआ है। ये मजमुआ कितने अरसे में लिखा गया और कितने अरसे में शाया होकर आप तक पहुंचा, ये आपको मुतल्लका तारीखों से मालूम हो सकता है। मजमुए का आखिरी अफसाना मम्मी लिखना शुरू किया था कि 16 अक्टूबर को खान लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कत्ल की खबर मौसूल हुई, जिससे दिमाग बहुत मुज़तरब रहा। इसके बाद मेरी मंजरी बच्ची जजिया जी तबे मोहरका में मुब्तला हो गई। उसके बायस भी कई दिन परेशान रहा। नतीजतन इस अफसाने की तकमील में तावीक हो गई।
سعادت حسن منٹو، لاہور، 28 اکتوبر 1951۔